Good morning, students. Our last topic that we did in the string was is ALNUM, means is a letter or a string that having a character, means a letter, or it has a number. Now let's move to our next function, that was a ninth function, and it is digit. Is digit. This function checks whether the given string has a digit only or some other character. If it has a digit, it can return true, and if it has a text other than the digit, letter, space, special symbols, it will return false. Okay, if I will go for its syntax is digit, and here is a string dot is digit. Now let's see its example. Its example is S is equal to 9648, S1 is equal to 96 AB hash, and S2 is equal to ABC hash. When I will use here S dot is digit, it will show true. When I will use S1 dot is digit, it will display the result false. Now when I will use S2 dot is digit, it will again display the result false, because both S1 and S2 has the letters and special symbols also. They don't contain only digits. That's why their result will be false. Now there is a 10th function, that is a is title function. 10th function is, according to the notes, the function 10th is title. Title means, what is a title? Basically, generally whenever we are writing the heading of any paragraph, essay or anything, we are using the first letter of every word capital. That case is called as a title case. This function is used to convert a string with any order, means it can be written in capital, small or anything. It will convert the string into title case. The first letter of the word will be the capital and rest all the word will be small. तो हर एक वर्ड के जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सभी क्या होंगे? स्मॉल होंगे. दिस इज़ वे हाउ इट वर्क्स. इसका सिंटेक्स क्या होगा बेटा? हमारे पास सिंटेक्स होगा स्ट्रिंग डॉट टाइटल. स्ट्रिंग डॉट टाइटल. तो इसकी एग्जांपल क्या होगी मेरे पास? S इज इक्वल टू COMPUTER कंप्यूटर साइंस, SCIENCE कंप्यूटर साइंस. आई ट्राई टू राइट ऑल द स्ट्रिंग इन अ स्मॉल लेटर. ठीक है, तो व्हेन आई विल यूज S dot title, it display the result COMPUTER computer SCIENCE computer science. It will display the result as a computer science, means C and S will be the capital letters. Understand? Next topic is, we have to go for a next function, that is a 11th function according to the notes, and its name is count. Okay, count. What it actually doing?
This function return a numeric value equal to the number of time a substring occur in a given string. Let it be start that if I have a string and there is a group of letter that is keep repeating and repeating in a string. If I pass that group of repeating letters in the count function along with the string, then it will show the number how many time it comes in a main string. Okay, so what is the syntax of the count function? Syntax of count function is string dot count, and inside it we will write substring, then start कॉमा एंड. अब स्टार्ट और एंड क्या चीज़ें हैं बेटा? स्टार्ट का मीनिंग है कि आपने किस इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो बेसिकली, किस इंडेक्स वैल्यू से आपने काउंटिंग शुरू करनी है कि जे आपकी काउंटिंग करे. उसके बाद एंड, कहाँ पे आप ख़त्म करना चाहते हैं. हो सकता है आपकी स्ट्रिंग में 100 लेटर्स हों, इंडेक्सेस शुड बी 0 to 99, तो आप चाहते हैं 10 से लेके 30 तक कोई स्ट्रिंग को चेक करना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन चेक इट. ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरी स्ट्रिंग में काउंट करना है तो वी कैन चेक इट इन होल स्ट्रिंग ऑल्सो. ओके, लेट आई हैव अ स्ट्रिंग दैट हैज़ अ डेटा हेलो हेलो, हाउ आर यू, hello hello. Maybe it look like that someone is talking on a phone and there is a no response. He say that hello hello, then ask him that how are you, again saying hello, but he is not getting any response. Okay, I write it in that way. Now if I write s dot count then hello, I will not mention anything here. It means the start automatically comes from 0. It will start from 0 means जहाँ से h से शुरू कर देगा. और एंड भी मैंने मेंशन नहीं किया तो ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ चली जाएगी क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी और जो एंड होगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी. तो मेरे पास जहाँ पे कितने हेलो दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 4. बट व्हेन आई राइट s डॉट काउंट, आगे लिखा हेलो, हेलो के बाद मैंने लिख दिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ई. अगर मैं ई से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ना ही जे हेलो काउंट होगा ना ही जे हेलो काउंट होगा, क्योंकि जे ई से शुरू हो रहा है तो हेलो तो बन ही नहीं रहा. तो मेरे पास आंसर कितना आएगा इन दोनों का? इट विल हैव आंसर 2. ओके, देन वी हैव द आंसर 2. अंडरस्टैंड? इट मीन्स कि हमारे पास जो काउंट फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग में जितनी बार भी सब स्ट्रिंग आ रही है उसको काउंट कर रहा है, बट इट विल आल्सो नीड सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू आल्सो, स्टार्ट एंड एंड वैल्यू. इफ वी आर नॉट मेंशनिंग, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एज स्टार्ट एंड एंड शुड बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, नेक्स्ट function, 12th function, it's quite simple function, that is a is lower function. This function checks if a whole string has a lowercase letter. अगर पूरी string में small letters use किए गए हैं और कोई digit symbol space use नहीं की गई है, it will show the result true, otherwise it will show the result false. It means its syntax is lower, but we will put string dot is lower. String dot is lower. Its syntax is basically like that. String dot is lower. No argument should be passed inside the bracket. It means it will check that string is in a lowercase or uppercase, and it will gives the result either in true form or in a false form. Okay. Now let's understand what are the examples. Example here, s is equal to Aman,
S1 is equal to Atul. If I write here S dot is lower, it will show true because all the letters of this string is in lowercase. Next, S1 dot is lower, it will show the result false. It will show the result false. It means that even a one letter alters its case, means it should be in capital case other than in small letters. It will display the result as a false. It will display the result as false. Now, there is a 13th function. I interchange it. Is lower was 13th and lower was 12th. I was telling you here lower function as a 13th function. This function deliberately converts the lower case into अपर केस. अगर कोई स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में लिखी गई है, अपर केस में लिखी गई है, तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं लोअर फंक्शन लगाता हूँ. तो सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स स्ट्रिंग डॉट लोअर. स्ट्रिंग डॉट लोअर जैसे ही लगाता हूँ तो वो स्ट्रिंग पूरी कन्वर्ट हो जाती है लोअर केस में. तो एग्जांपल देखते हैं इसकी. एग्जांपल S is equal to CAPITAL कैपिटल. मैंने कैपिटल वर्ड लिखा है और टॉगल केस किया है. टॉगल केस होता है अल्टरनेटिवली कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ टॉगल केस. ओके, तो जो टॉगल केस है मैंने लिखा हुआ है. जब मैं लिखता हूँ इसमें S डॉट लोअर, जैसे ही मैंने लोअर फंक्शन लगाया तो रिजल्ट शुड बी कैपिटल लाइक दैट. ऑल द लेटर्स आर कन्वर्टेड टू लोअर केस लेटर. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. दैट फंक्शन इज अपर फंक्शन. बेसिकली इट इज अ opposite of the lower function, and upper function basically converts every lowercase letter to uppercase. Then we can say that if we have a syntax as same, that is a string dot upper, and we have a string here S is equal to CAPITAL capital, and I will use S dot upper. The result will be CAPITAL capital, string dot capital. ओके, तो मेरे पास जो string dot capital है, तो मैंने क्या करना है कि इसे ऐसे लिखा तो वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो रहा है. समझ आई चीज़ की? तो इसी तरह से मेरे पास 15th फंक्शन है जो वर्क करता है किस तरह से, इज़ अपर. ये सिर्फ चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में अपर केस लेटर ही हैं. अगर हैं तो ट्रू, अगर एक भी लोअर डिजिट सिंबल आता है तो देन इट विल रिटर्न अ फॉल्स. तो देखते हैं इसका सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स हुआ मेरे पास स्ट्रिंग डॉट इज अपर. एग्जाम्पल में सीधा लिखता हूँ इसे, ABC डॉट इज अपर. इट विल रिटर्न ट्रू. इट विल रिटर्न ट्रू. बट व्हेन आई वाज यूजिंग ABC डॉट इज अपर, जब इसका इज अपर लिखा देन इट विल बिकम अ फॉल्स. द रिज़ल्ट विल बी फॉल्स. तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स बन जाएगा. समझ आई चीज़ की? तो इसका मीनिंग है कि जब भी हम इज़ अपर लिखेंगे तो वो चेक करेगा कि लेटर्स आर कैपिटल. जब इज़ लोअर चेक करेंगे तो वो चेक करेगा लेटर शुड बी लोअर, और उसी केस में वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा. लेकिन जब हम लिखते हैं लोअर, इट इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. और जब मैं बात करता हूँ इज़ अपर, तो वो चेक अपर की बात करता हूँ तो इट इज़ कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू अपर केस लेटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. दैट फंक्शन इज़ अ
L strip. 16th question, function that is a L strip. It means left hand side stripping. Stripping mean removing. अब एक बात देखनी है कि जब कभी L strip की बात आती है तो आप एक स्ट्रिंग लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर वो सब स्ट्रिंग पास करते हैं। अगर वो सब स्ट्रिंग इसकी लेफ़्ट साइड में है तो वो डिलीट हो जाती है, अदरवाइज़ डिलीट नहीं होती। और एक चीज़, अगर आप इसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं देते हैं तो जो लेफ़्ट हैंड साइड की स्पेस होगी वो उसको डिलीट करेगा। लेकिन इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि आर स्ट्रिप जो है सेम इसकी तरह है। जैसे मैंने लिखा है, सिंटेक्स है इसका स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप, स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप, और बीच में मैंने लिख दिया इसे सब स्ट्रिंग। क्या लिख दिया? सब स्ट्रिंग। अगर सब स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे तो वो स्पेस को कंसिडर करेगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा APPLE एप्पल, ठीक है, और इसके आगे भी स्पेस दे दी थोड़ी सी, और आगे जाके लिखा इसका एल स्ट्रिप। जैसे ही मैं एल स्ट्रिप लिखता हूँ तो इसने क्या किया, एप्पल की जो फर्स्ट वाली स्पेस को डिलीट कर दिया। एंड स्ट्रिंग विल बी, जहाँ डबल कोट्स नहीं होंगे, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये क्या आउटपुट देगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एप्पल, सॉरी, आगे स्पेस होगी इतनी सी, लेकिन वो एप्पल के पहले वाली स्पेस जो डिलीट कर चुका होगा। अगर आप इसे बेटर तरीके से चेक करना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, मैं लगा देता हूँ इसे LEN, लेंथ निकालने के लिए, और उसके बाद क्या किया, एप्पल डॉट एल स्ट्रिप, एप्पल डॉट एल स्ट्रिप, और इसे इस तरह से क्लोज कर दिया। अब जहाँ पे स्पेस थी, लेट इट बी 1 2 3 1 2, तो जहाँ कितने हो गए, 3 + 2 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर 10 आना चाहिए था, लेकिन इसने 3 स्पेसेस डिलीट कर दी तो आंसर विल बी 7। इसका इस तरह से 7 आंसर आएगा। समझ आई चीज़ की? नेक्स्ट एक स्ट्रिंग मैं लेता हूँ जिसके लिए लिखता हूँ S = कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब मैंने क्या लिखा, S.L स्ट्रिप। ये चीज़ समझने वाली है और ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा है OCM, इस तरह से लिखा। अब जब मैंने OCM लिखा तो OCM तो जहाँ पे है ही नहीं इस ऑर्डर में, तो इट विल जनरेट अ सीक्वेंस। क्या क्या सीक्वेंस होंगे, पहले आएगा O, फिर C, फिर M, एक सीक्वेंस बनेगा इसका इस तरह से OCM, फिर दो लेटर के OC CM OM, ओके। नेक्स्ट बनेगा OCM COM MCO, इस तरह से ऑर्डर बनेंगे। अब इनमें से कोई एक ऑर्डर भी मेरे पास है, जैसे जे वाला ऑर्डर है, तो जे वाला ऑर्डर जहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को मिल रहा है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग लेफ्ट साइड पे, तो जे इस चीज़ को डिलीट कर देगा। द आउटपुट विल बी PUTER, वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो सब स्ट्रिंग मिली उसके डिफरेंट ऑर्डर्स बने, उस डिफरेंट ऑर्डर्स का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन मेरे पास मिल जाता है देन इट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द राइट लेफ्ट। और सेम इज द केस विद आर स्ट्रिप। अगर मैं आर स्ट्रिप की बात करता हूँ, इट विल डिलीट द कंटेंट फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ तो स्पेस डिलीट करेगा। अगर आप कोई सब स्ट्रिंग नहीं दे रहे हैं, अगर आप कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं देते हैं तो वो डिलीट क्या करेगा, आपका राइट साइड की स्पेस। और जब बात करते हैं हम किसकी, सब स्ट्रिंग की, तो उसके डिफरेंट ऑर्डर्स और अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उन अरेंजमेंट्स का कोई भी पार्ट हमें मिल जाता है राइट साइड लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर ही है मेरे पास, कंप्यूटर एस के अंदर हमने इसे स्टोर किया है, सॉरी एस के अंदर स्टोर किया है, तो मैं लिखता हूँ S.R strip, S.R strip ETR। तो मैंने जो लिखा है इसका एक ऑर्डर बन जाता है TER। आप डिफरेंट ऑर्डर बना सकते हैं, पहले
टी होगा सिंगल, फिर ई होगा, फिर आर होगा, फिर दो दो लेटर्स के होंगे, फिर तीन तीन लेटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। जो भी कॉम्बिनेशन हमें मिलता है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। तो जहाँ पे टी ई आर लास्ट में मिल रहा है पूरी तरह से, तो रिजल्ट विल बी योर COMPU, दिस विल बी द रिजल्ट। दिस इज हाउ द आर स्ट्रिप विल वर्क। ओके, वी हैव डन the 7 up to the 17 the question. Next 18, there is a strip. It's quite simple. The strip is deleting the spaces or a string from either side. लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, वो कहीं भी होगा वो आपको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिलीटिंग स्पेसिस फ्रॉम ईदर साइड्स, जितनी दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से दोनों को डिलीट कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिप फंक्शन। ये स्ट्रिप फंक्शन है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा मेरे पास, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप और बीच में सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ एस, इसके अंदर डाला EXY COMEXY। ठीक है, उसके बाद लिखा S डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप और बीच में क्या लिखा EXY। दोनों तरफ से जो EXY है वो डिलीट हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी कॉम्प। दिस इज हाउ द स्ट्रिप फंक्शन विल बी वर्क। जिस तरह से जो हमने किया है इस तरह से ये स्ट्रिप फंक्शन दोनों साइड से डिलीट कर लेगा। समझ आई चीज़ की? ठीक है, तो मेरे पास ये जो है कंटेंट। अभी नेक्स्ट फंक्शन आता है जो बहुत ही सिंपल है, आपको आइडिया तो होगा इसका। ये फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन है मेरे पास इज़ स्पेस। स्पेस नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ इज़ वाला ही है। दिस फंक्शन इज़ बेसिकली द 19th फंक्शन इज़ स्पेस। This function check whether a letter is a space, and if it's a space it will return true, otherwise it will return false। ये जो फंक्शन है क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा क्या, स्पेस अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंटेक्स है इसका स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। ओके, तो जब से मैंने लिखा इसे डॉट इज स्पेस इट विल रिटर्न ट्रू, और जब मैं लिखता हूँ इस तरह से AB डॉट इज स्पेस कोई भी लेटर होगा इट विल रिटर्न फॉल्स, इट विल रिटर्न फॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू द 20th फंक्शन, that is title। okay, 20th is title, is title। this function check whether the string is in a title case or not। अगर टाइटल केस में हुआ तो ट्रू, अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स। हमें पता है कि जब भी हम टाइटल केस की बात करते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर वैसा होता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स है इस टाइटल, उससे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है S इज इक्वल टू WORD वर्ड COUNT काउंट। तो मैंने लिखा S डॉट इज़ टाइटल, तो जहाँ का रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। और अगर मैं लिखता हूँ ABXYT डॉट इज़ टाइटल, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।